everyone, welcome to Yopedia and this is Shikha. So friends, if you are also preparing for the interview of management trainee law in NBCC, right, that is an urban infrastructure development company, and if you are also preparing for the interview of management trainee law, this particular video is going to help you out, as I'm going to provide you a list of most important expected HR question in your interview, right? You have to be I can say prepare for all the questions, and yes, of course, you can download this documentation from your PDF panel, can access it, read it out as per your own reviving methods, how you're going to be go with that. Number second, I would say, if you're preparing all these questions with your PDF mentors by taking different snap sessions and mock sessions, HR session, technical session, that would going to be help you out surely in your interview preparation, right? Let's get started that what are the important expected HR question for NBCC management trainee law. So starting with this table of this content, we are going to be cover all these things in this particular video related to generic HR, related to legal knowledge and compliance, government and regulatory compliance, Company Act, SCBI guidelines, Indian Contract Act, and lot more things. Starting with generic HR question, first of all, is your introduction. Your introduction, your hobbies, your interest, your strength, and your weaknesses, right? After that, why do you want to join NBCC? What do you know about that? What are the key things it is offering basically? And what are the roles and responsibilities of a management trainee law, right? How do you handle pressure and tight deadlines in legal matters? Why do you want to work in the infrastructure and real estate sector? ठीक है, कोई सिचुएशन बताइए जब आपने कोई कंफ्लिक्ट रिजॉल्व किया हो, आप एनबीसीसी के बारे में, कॉर्पोरेट सेक्टर के बारे में क्या जानते हैं एंड इसका क्या रोल है इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में, ठीक है? आप लेटेस्ट लीगल डेवलपमेंट से कैसे अपडेट रहेंगे एंड वेयर डू यू सी योरसेल्फ इन 5 years इन द लीगल फील्ड. लीगल फील्ड में आप अपने आप को 5 साल बाद कहाँ देखते हो, व्हाट इज योर विजन इन लाइफ, ठीक है? हाउ डू यू हैंडल एथिकल डिलेमास इन कॉर्पोरेट लॉ. Legal knowledge and compliance questions. So this is the list of legal knowledge and compliance questions. So basically you need to be aware about the legal matters, legal terminologies, legal concept, which makes you aware and which makes you prepare for your interview round in the best suited manner. What are the key laws applicable? Key laws क्या हैं जो infrastructure और construction sector पे applicable है इंडिया में, ठीक है? Contract law का concept बताइए, क्यों वो relevant है construction project में, ठीक है? रोल ऑफ आर्बिट्रेशन एंड डिस्प्यूट रेजोल्यूशन एंड कंपनी एक्ट 2013 का क्या इंपैक्ट है पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस लाइक एनबीसीसी, ठीक है? इंपॉर्टेंस ऑफ कंप्लायंस इन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, लीगल एस्पेक्ट को एक्सप्लेन कीजिए, पब्लिक प्रोक्यूरमेंट एंड टेंडरिंग इन इंडिया. मेजर डिफरेंसेस बताइए सिविल एंड क्रिमिनल लायबिलिटीज इन बिजनेस, एंड यस ऑफ कोर्स आप इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्टी कोड से क्या समझते हैं एंड ये एनबीसीसी में कैसे रेलेवेंट है, ठीक है? आप अपने आप को कैसे अपडेट रखेंगे लीगल अमेंडमेंट से, रेगुलेशन से जो न्यू है बेसिकली ट्रेंडिंग है, लीगल डिस्प्यूट्स के साथ कैसे डील करेंगे आप कॉन्ट्रैक्टर्स एंड क्लाइंट्स के बीच. गवर्नमेंट एंड रेगुलेटरी कंपाइल से अगर मैं अगर मैं आपको बताऊं कि कौन से इंपॉर्टेंट एचआर क्वेश्चन हो सकते हैं, इसमें बेसिकली आता है कि मेजर रेगुलेटरी चैलेंजेस बताइए जो फेस किए हैं एनबीसीसी ने इस करंट इनके प्रोजेक्ट्स में, सिग्निफिकेंस ऑफ आरटीआई एक्ट इन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस, right? After that, I would say this is how does the Prevention of Corruption Act compiles in PSUs में कैसे impact करती है. Legal provisions क्या है Environmental Protection Act के 1986 and compiles का आप कैसे इंश्योर करेंगे पब्लिक प्रोक्यूरमेंट पॉलिसी के साथ. सीवीसी का क्या रोल है टू मॉनिटर पब्लिक सेक्टर कॉन्ट्रैक्ट्स. Implications of legal implications of land acquisitions and under the Law Acquisitions Act 2013. Competition Act क्या है 2002 जो NBCC पे कैसे अप्लाई है, चैलेंजेस बताइए रेगुलेटरी जो मतलब अप्रूवल्स को हैंडल करने में आते हैं, लार्ज प्रोजेक्ट को हैंडल करने में. लीगल कंप्लाइंस को आप कैसे हैंडल करेंगे, कैसे ऑडिट करेंगे. Corporate governance and ethics. This is very must part of your interview, and of course they're going to be ask you this generic part related to corporate governance, related to ethics. Principles of good corporate governance क्या होता है, ठीक है? आप ethical decision making को कैसे इंश्योर करेंगे लीगल मैटर्स पे.
बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स क्या है एंड वो कंप्लायंस में गवर्नेंस में क्या रोल प्ले करता है, सिग्निफिकेंस बताइए विसल ब्लोअर पॉलिसीज इन PSUs, वेरी इंपॉर्टेंट। राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट क्या है एंड इसका गवर्नमेंट इम्पैक्ट क्या है इन NBCC, हाउ शुड अ कंपनी हैंडल कन्फ्लिक्ट्स इन इंटरेस्ट इन लीगल मैटर, ऑफ इंटरेस्ट इन लीगल मैटर, जब लीगल मैटर्स हैं तो उसको कैसे हैंडल करना चाहिए कन्फ्लिक्ट को। What steps should be taken to prevent insider trading in listed PSU and SEB कैसे रेगुलेट करती है, क्या रेगुलेशंस हैं उसके जो NBCC को मस्ट कंप्लाई विद अ लिस्टेड कंपनी, राइट। ट्रांसपेरेंसी को कैसे इंश्योर किया जा सकता है प्रोक्यूरमेंट एंड टेंडरिंग प्रोसेसेस में, एंड यस ऑफ कोर्स लीगल फ्रेमवर्क्स को आप कैसे इंश्योर करेंगे अकाउंटेबिलिटी एंड PSUs के फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस में, राइट। उसके बाद आता है कंपनीज एक्ट 2013, इसके की ऑब्जेक्टिव बताइए। नाउ with this questions I'm going to provide you some skeleton answer of that, ठीक है, कि आप ये चीजें बोल सकते हो, रेस्ट आप अपना आंसर ऐड कर लेना विद योर इन्फॉर्मेशन एंड योर नॉलेज, बट इसमें बहुत इंपॉर्टेंट स्केलेटन आपको फ्रेम करके दिया हुआ है। सी की ऑब्जेक्टिव क्या है कंपनी एक्ट के, ये कॉर्पोरेट गवर्नेंस को इंप्रूव करती है, ट्रांसपेरेंसी को इनहांस करती है, इंश्योर करती है लाइक स्ट्रिक्टर कंप्लायंस मेजर्स एंड स्टेक होल्डर्स के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करती है। डिफरेंस प्राइवेट एंड पब्लिक में क्या है कंपनी में, प्राइवेट कंपनी जो है रिस्ट्रिक्ट करती है ट्रांसफर ऑफ शेयर्स इन लिमिट्स द मेंबर 200 एंड जो पब्लिक कंपनी है वो पब्लिक विदाउट रिस्ट्रिक्शन में मतलब अपना शेयर कर सकती है। ड्यूटीज ऑफ डायरेक्टर अंडर द कंपनीज एक्ट, गुड फेथ होना चाहिए, कंफ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट को अवॉइड करे, लॉज और एक्ट के साथ बेस्ट इंटरेस्ट प्रैक्टिसेस करे विद कंपनी एंड स्टेक होल्डर्स। डिफरेंस बिटवीन मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एंड आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन, ठीक है, आंसर यू कैन से इट आउट। What is the process of winding up company under the Companies Act, ठीक है, penalties for non-compliance corporate governance provisions क्या हैं, monetary fines आ जाते हैं, disqualification of directors आ जाता है, imprisonment in severe cases आ जाता है, severe cases। significance क्या है, National Company Law Tribunal NCLT, ये हैंडल करता है corporate disputes, insolvency cases, company law violations। रोल क्या है रजिस्ट्रार का, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज, ये रजिस्ट्रार जो है वो कंप्लायंस इंश्योर करते विद कंपनी एक्ट, अप्रूव मेनी रजिस्ट्रेशंस एंड ओवरसीइंग फाइलिंग्स एंड डिस्क्लोजर्स। SEB की गाइडलाइंस के बारे में पता होना चाहिए, क्या है SEB, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज लाइक बोर्ड ऑफ इंडिया। रेगुलेशंस क्या है फॉर द इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग्स, उनको अपने एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मीटअप करना है, डिस्क्लोज फाइनेंशियल्स, ऑब्टेन अप्रूवल्स एंड फॉलो लिस्टिंग एप्लीकेशंस। SEB की गाइडलाइंस बताइए फॉर इनसाइडर ट्रेडिंग and explain the concept of takeover code SEB. What are the key provisions of SEBI regulations 2050 जिसमें कि कंपनीज को must disclose financial performance, board decision and related party transaction from maintain transparency. SEBI grievance redress mechanism क्या है, आंसर you can check it out here, इनका सबका एक skeleton आंसर आपको given है। What is the penalty for non-compliance with SEB like regulations? SEBI रेगुलेट कैसे करती है म्यूचुअल फंड्स को, ठीक है, क्या रोल है SEBI का फ्रॉड को प्रिवेंट करने में, लाइक फ्रॉड ट्रेड प्रैक्टिसेस को प्रिवेंट करने में, एंड SEBI फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स को कैसे रेगुलेट करती है, ठीक है। कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, यस ऑफ कोर्स CSR इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ एनी अदर लाइक एनी पब्लिक सेक्टर और आई वुड से प्राइवेट कंपनीज, जहां पे वो अपना कुछ परसेंट दे गोइंग टू बी डिवोट एंड कॉन्ट्रीब्यूट टू द सोसाइटी। CSR क्या होता है एज पर द कंपनी एक्ट, कंपनीज कौन सी कंपनी को रिक्वायर्ड है CSR रेगुलेशंस, जिन कंपनी का जो वर्थ वो है 500 करोड़ है टर्नओवर एंड 1000 करोड़ है और नेट प्रॉफिट उनका 5 करोड़ है, उनके ऊपर ये जरूर मस्ट अप्लाइड रूल्स हैं। परसेंटेज क्या है 2%, एटलीस्ट 2%, इसको जरूर चेक कर लीजिएगा, एटलीस्ट 2% उनको अपना उसमें कंट्रीब्यूट करना होता है। व्हाट आर द परमिशिबल CSR एक्टिविटीज अंडर शेड्यूल 7th, आई कैन से यस, इसमें आता है एरेडिकेटिंग हंगर, प्रमोटिंग एजुकेशन, इंश्योरिंग एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी एंड सपोर्टिंग रूरल डेवलपमेंट। CSR एक्सपेंडिचर मैंडेटरी होता है, यस, कंपनीज मस्ट डिस्क्लोज देयर CSR स्पेंडिंग इन एनुअल रिपोर्ट्स, राइट। Can CSR funds be used for employee welfare? No, ये CSR फंड जो है
एक्सटर्नल कम्युनिटीज के लिए होता है, ना कि एम्प्लॉय और उनकी फैमिली के लिए, ठीक है, जो इन जनरल सोसाइटी के लिए होता है बेसिकली। पेनल्टीज क्या है? नॉन कंप्लायंस विद CSR प्रोविजंस। अगर कोई भी कंपनी फेल हो जाती है अपना CSR अमाउंट को स्पेंड करने में, तो उसको अपना मस्ट रीजन एक्सप्लेन जो है करना है इन देयर रिपोर्ट्स परसिस्टेंट, तभी उनकी पेनल्टीज का कोई सोल्यूशन हो सकता है। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 के बारे में आपको पता होना चाहिए, ये क्या है, व्हाट आर द एसेंशियल एलिमेंट्स फॉर दिस वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। डिफरेंसेस बताइए आई वुड से बिटवीन वॉइड, वॉयबल एंड इलीगल कॉन्ट्रैक्ट्स। व्हाट इज मीन बाय कंसिडरेशन इन अ कॉन्ट्रैक्ट? कंसिडरेशन मतलब एक ऐसी वैल्यू, समथिंग ऑफ वैल्यू एक्सचेंज बिटवीन पार्टीज टू फॉर्म अ बाइंडिंग एग्रीमेंट। डॉक्ट्राइन ऑफ फ्रस्ट्रेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? What is the breach of contract and what are the remedies? A breach occurs when a party fails to fulfill contractual obligation. कोई भी पार्टी जब कॉन्ट्रैक्ट की कोई भी चीज फुलफिल करने के लिए फेल हो जाती है, उसमें ये होता है ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। रेमेडीज क्या इंक्लूडेड? डैमेज, स्पेसिफिक परफॉर्मेंस या कुछ इंजक्शंस हो सकती हैं। कासी कॉन्ट्रैक्ट्स क्या होते हैं? इट इज द एब्सेंस ऑफ फॉर्मल एग्रीमेंट टू प्रिवेंट अनजस्ट एनरिचमेंट। Explain offer and invitation to offer with examples. What are the different types of contract under Indian Contract Act? ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अनलेटरल हो सकते हैं, बायलेटरल हो सकते हैं, कॉन्टीजेंट हो सकते हैं, एक्सप्रेस हो सकते हैं और इम्प्लाइड हो सकते हैं। What is mean by coercion and undue influence? What is contingent contract? ये क्या होता है? ये डिपेंड होता है फॉर द फ्यूचर अनसर्टेन इवेंट, ठीक है, enforceable by only when the event occurs, right? After that I would say RERA, Real Estate Regulations and Development Act 2016 क्या है, इसके ऑब्जेक्टिव क्या है, कि पेनल्टीज क्या है फॉर द नॉन कंप्लायंस अंडर, ठीक है, इनको क्या करना पड़ सकता है, जो डेवलपर्स हैं उनको 10% ऑफ द प्रोजेक्ट कॉस्ट एज अ फाइन और 3 साल की इम्प्रिजनमेंट भी हो सकती है। व्हाट आर द राइट्स ऑफ होम बायर्स अंडर RER? फुल प्रोजेक्ट इंफॉर्मेशन एंड रिफंड इन केस ऑफ डिले और डिफेक्ट लाइबिलिटी फॉर 5 years. Function of Real Estate Appellate Tribunal under RER. Can buyers file a complaint against builder under RER? Yes, जो buyers हैं वो like complaint file कर सकते हैं with state RER authority and appeal for the tribunal, ठीक है। नेक्स्ट इज लैंड एक्विजिशंस एक्ट 2013। इससे रिलेटेड भी कुछ क्वेश्चंस हैं, कुछ चीजें आपको जरूर पता होनी चाहिए। पर्पस क्या होता है इसका, ठीक है, कितनी जो परसेंट है वो कंसेंट लाइक उसकी रिक्वायर्ड है फॉर द प्राइवेट एंड PPP प्रोजेक्ट्स। 80% कंसेंट फॉर प्राइवेट प्रोजेक्ट्स एंड 70% फॉर PPP प्रोजेक्ट्स, ठीक है। कंपनसेशन फॉर्मूला क्या होता है अंडर द एक्ट? कंपनसेशन इज 2/4 टाइम इन द मार्केट वैल्यू डिपेंडिंग ऑन अर्बन और रूरल एरियाज। सोशल इम्पैक्ट क्या है? सोशल इम्पैक्ट असेसमेंट क्या है? व्हाट आर द टाइमलाइंस ऑफ लैंड एक्विजिशंस अंडर एक्ट? Preliminary notification within 12 months, award declaration 2 years, and yes, re-evaluation before displacement, right? So I have provided the list of these things. Industrial Disputes Act के बारे में आपको जरूर पढ़ना है, 1947। ऑब्जेक्टिव क्या है इसका? टू रिजॉल्व इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स, प्रिवेंट अनफेयर लेबर प्रैक्टिसेस एंड इंश्योर जॉब सिक्योरिटी, ठीक है। डेफिनेशन क्या है इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट की? एक डिस्प्यूट जो एम्प्लॉयर्स और वर्कर्स के बीच में हो रहा है रिगार्डिंग एम्प्लॉयमेंट कंडीशंस एंड टर्मिनेशंस, ठीक है। सो आई हैव प्रोवाइडेड लिस्ट ऑफ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। प्रोसीजर फॉर रीअट्रेचमेंट अंडर द एक्ट, पेनल्टी फॉर इलीगल स्ट्राइक्स एंड लॉकआउट, वर्कमैन अंडर द एक्ट कौन होते हैं, रोल क्या है इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल का, ठीक है। ये सारे क्वेश्चंस आपने प्रिपेयर करने, बेसिकली वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड एंड मिसलेनियस प्रोविजंस एक्ट 1952 से क्या क्वेश्चन आ सकते हैं? ऑब्जेक्टिव बताइए एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड का एंड मिसलेनियस प्रोविजन एक्ट का 1952। जो ये एक्ट है एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड है, जो बेसिकली ये सोशल सिक्योरिटी लाइक बेनिफिट कुछ प्रोवाइड कर रहा है, इंश्योरेंस टू द एम्प्लॉयज वर्किंग इन एस्टैब्लिशमेंट कवर्ड अंडर दिस एक्ट, ठीक है। व्हाट आर द 3 स्कीम्स फ्रेम्ड अंडर द EPF एक्ट? एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड स्कीम, employees pension scheme, employees deposit linked insurance schemes, ठीक है। Which establishment are covered under the EPF Act? What is the current contribution rate? Employees contribution 12% and employees contribution in that is entirely 12% to EPF, ठीक है।
Universal account number in EPF. What is the role of Employees Provident Fund Organization? What are the recent amendments in EPF Act? And yes, Arbitrations and Conciliation Act 1996 के ऑब्जेक्टिव क्या है? ठीक है, डोमेस्टिक आर्बिट्रेशन बेसिकली आई वुड से कैसे हैं ये, की टाइप्स ऑफ आर्बिट्रेशन अंडर एक्ट बताइए, डोमेस्टिक है और एक इंटरनेशनल कमर्शियल है. सिग्निफिकेंस ऑफ 2015 अमेंडमेंट टू द आर्बिट्रेशन एक्ट. क्वालिफिकेशन क्या होते हैं आर्बिट्रेटर की, रोल ऑफ आर्बिट्रेटर ट्रिब्यूनल. व्हाट इज अ फास्ट ट्रैक आर्बिट्रेशन? सिंप्लीफाइड प्रोसेस होता है जो पार्टीज एग्री टू कंक्लूड प्रोसीडिंग्स विद 6 मंथ. ठीक है. एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट के बारे में पता होना चाहिए 1986. ऑब्जेक्टिव क्या है इसका? डेफिनेशन ऑफ एनवायरमेंटल पॉल्यूटेंट अंडर दिस एक्ट क्या है, राइट. पावर्स क्या है सेंट्रल गवर्नमेंट के पास हैव अंडर द एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986. एंड पेनल्टीज क्या है जो इस एक्ट के अगर आप वायलेट करते हो तो क्या हो सकता है. अंडर सेक्शन 15 अगर आप इसको इफ यू फेल टू कंप्लाई विद दिस एक्ट, इसके जो रूल्स हैं दैट कैन बी इम्प्रिजनमेंट अप टू 5 years एंड फाइन आपको लग सकता है 1 साल का, और दोनों भी हो सकते हैं. ठीक है. और अगर इस एक्ट का वायलेशन कॉन्टिन्यूस रहता है तो आपको एडिशनल फाइन पड़ता है ₹5000 पर डे का पड़ता है. ठीक है. एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट, सिग्निफिकेंस ऑफ पॉल्यूटर पेज. एंड यस, these are the questions related to management trainee law in NBCC. ठीक है. सो हमने डिफरेंट डोमेन को कवर किया है इन दिस पर्टिकुलर वीडियो विद आंसर्स. एक स्केलेटाइन्स आंसर आपको गिवन है इन क्वेश्चंस के. प्लीज रीड इट आउट, प्रिपेयर इट वेल विद अटेंडिंग डिफरेंट काइंड ऑफ मॉक सेशंस, HR सेशंस, टेक्निकल स्नैप्स लाइक दैट. आपको NBCC का जो जर्नल इन्फॉर्मेशन है उसकी भी लाइक अलग एक सेपरेट वीडियो है, एंड फॉर दिस HR क्वेश्चन अ सेपरेट वीडियो. If you are watching both of the videos, you are done with the things, but you need to be practice as well, right? Both of the documentation you can find out on the Yopedia panel, and yes, of course, don't forget to prepare and practice it well. All the very best. Good luck.